So how's your experience, Swati, now? Have you been practicing anything I'm based on the practicing concepts? whatever ma'am has told in last session और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। बस कुछ कुछ डाउट्स जब रीडिंग करते टाइम आते हैं तो वो फिर मेरे दिमाग में रख के मैं वेट करती हूँ ये सेशन कब होगा। Sure, sure, sure. So आज के सेशन में भी you can of course share any हम्म questions, queries that you have. And हम्म। great. Welcome. Pritika is here as well. We've got one more participant. Okay, great. Fine. So we'll start with today's session, and we've got another. I think Seema is here as well. Seema, if you can also switch on your cam, if you can. So let's have a little bit of an interactive session going ahead. And as has been, if anyone has come here for the first time, I think CT is here for the first time. So this is a series of Ask Me Anything About Tarot sessions where any questions, queries that you always had, either as a new beginner or someone who has already been practicing tarot. This is where you can actually fine tune your practice, understand if there are any concepts that you're not very clear about, or anything about maybe certain myths about tarot which you felt confused about. So these sessions are going to be a new learning experience each time you join in. And of course, there's a lot that you can do as being a part of the Ask Me Anything community as well, where we'll be sharing some learning resources, some other aspects as well, which can actually help you take your tarot learning to a very different level. So we are also joined by Charuta, the expert for the session, and she's been someone with over almost 20 years of her experience as a spiritual counselor and coach. She's been into manifestation and energy sciences, and tarot again is of course something that she has not only practiced but also taught. She's we've, through Soul Chemist as a platform. We have built certain learning materials and courses as well, which actually help you deepen your relationship with tarot, understand tarot, the very intricacies of it, right? So Charuta is here, and I'd ask her to take over and participate. Yes, thank you Participant. so much, Vishal. Hello, everyone. Good morning. Please हेलो। switch on हेलो your मैम। cameras. Hello. Please switch on your cameras. So Yes, yes, this yes. will be an interactive session. So I really would like you all to switch on your cameras. All right. So yeah, we can directly start off with questions. Okay. People who are joining in for the first time, just you can share at what stage of learning you are. Are you a beginner? Are you a practitioner? Can we have some sharing, please? Yes, yes. So we have Seema, someone by the name PG. There's a Zoom Yeah. user. If you can just mention your names, Correct. that will be. Just quick introduction, like Yes, because this is not a directly passive introduce session, yourself. like just attending a webinar. It is somewhere where you can actually ask more questions. टैरो में कहीं पे भी आपको कोई ऐसे लग रहा है कि लर्निंग में कहीं आप शॉर्ट पढ़ रहे हो या कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ये सेशंस का आप फायदा ले सकते हो. Yeah, you can unmute yourself and start, asking questions and Sure. introducing yourself, like at what stage of learning you are. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, actually, I am learning tarot in the process. My Hmm. course is going on. So, but the only thing is that I am facing difficulty in, interpreting many cards. When somebody, if there is a question, I'm not able Ah, to, suppose. ah. So, Sethi, right? Who's asking this question? All right. So the first of all, just be specific Yes, here ma'am. because see, I don't know what kind of course you have purchased. I don't know their teaching method, so I can't comment on that. Okay, I can talk about my course where I have each and every card I teach how to interpret on every aspect of life. But is there any specific question that you have in your mind today? You can ask me that.
Ma'am, first of all, I just wanted to know that what kind of a group and a community you have formed, because I am new in this group. So I Acha. don't know, like I just read the name, ask me Okay, anything. okay. Fine, fine. Yeah. So ठीक First, है. So you know what? What we will do is we will share my blog again. You know, I think if you have joined in this group, you know, Abhi, so you must have missed that blogs wherein I had mentioned my intention behind starting off this platform. So just a quick background. So I am into spiritual counseling, manifestation coaching, and tarot card reading, numerology, and many other things since 2010. All right, and I come from a corporate background. I have got 10 years of corporate experience, but this was my passion, and so I came into this full time. All right, so I've been teaching tarot card reading. I've been practicing tarot card reading from 2011 or 12. All right, so and I'm extremely passionate about it. All right, the thing that I've been observing nowadays, many tarot card readers struggle because they lack basic understanding of spirituality. All right, card reading is not just about understanding meaning. तो आपको, even if you just search on the Google what is the meaning of Ace of Cups, what is the meaning of a Page of Swords, you will get it. So tarot card reading goes beyond what is the meaning of the card. Interpretation is a skill which requires experience, knowledge, logic. I always say tarot card reading is a science, and art, practice, logic, and everything. practice also. Practice, obviously, with practice. So it's like, say, what is the difference? Like, अगर आपने MBBS कर लिया, Right. just by passing the degree, next day you can't perform the surgery, right? So each case is different, right? So you should Ma'am, have an experience. So yeah, I'll tell you one. If I talk about myself, मैम मुझे ऐसा एज सच में ये नहीं बोल सकती कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज अभी तो मेरा कोर्स खत्म भी नहीं हुआ. तो all अभी आई एम ऑन right. दैट स्टेज की सिर्फ एक्सप्लेनेशन कार्ड्स का फिनिश हुआ है. प्लस अब जो है हम प्रैक्टिस में हैं, और अभी स्प्रेड्स भी हमने पूरे नहीं सीखे हैं. बट द पॉइंट इज, मैं कहाँ मतलब मैं क्यों यहाँ आई आपके प्लेटफॉर्म पे, मैं क्यों आई, उसका रीजन मैं बताती हूँ. एक तो मैं दूसरे लोगों का थोड़ा व्यू, इसी लाइन में जो है उनका थोड़ा व्यू जानना चाहती थी, बीइंग इन अ ग्रुप. और अगर आप ग्रुप चैट ऑन करते होंगे कभी, मुझे नहीं पता उसमें सब कर सकते हैं टाइप या ओनली एडमिन कैन टाइप, तो थोड़ा एक पता चलता है कि. Just switch on और your camera. I just request you. Just switch on your camera. I'm not ready. I'm just sitting in the house. It's okay. मतलब, It's और okay. Everybody is at. Yeah. मैं रेडी वेडी नहीं हूँ. तो मैं It's इसलिए okay. ऑन It's नहीं. okay. It's a very informal session. Don't worry about it. Yeah. तो मैम मुझे बेसिकली क्या है कि मैं रेकी में हूँ, रेकी हीलिंग में फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2010 और समथिंग. हेलो. Yeah, yeah. I can hear you. Go ahead. Okay, your like picture was gone. I'm not very good in computer also, so I'm अच्छा. talking through the mobile. तो अच्छा. मैं Okay. क्या है कि मैंने जब ये कोर्स मुझे बहुत खींच रहा था अपनी तरफ, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उनसे पहले पूछा कि, बिकॉज मुझे देखिए हर एक को अपना पता होता है, तो हम्म. मुझे पता है कि मेरा थोड़ा मेमोरी मेमोरी का थोड़ा सा इशू है. अच्छा. तो Okay. हाँ, तो हाँ. और एज फैक्टर तो है ही है. आई एम 55. तो मैंने उनको पूछा था कि क्या मैं कर पाऊंगी, मतलब हम्म. आपको क्या लगता है. तो वेबिनार में तो उन्होंने यही कहा था कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे कराएंगे आपको. तो हम्म. मैंने ज्वाइन कर लिया था. एंड मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो मेंटोर अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है. हम्म. उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हमें दी हैं जो हम्म. शायद मुझे लगता है भगवान ने मुझे उन्हीं चीजों के लिए उनके पास भेजा था, क्योंकि कुछ चीजें मुझे खींच रही थी अपनी तरफ. ओकल्ट में तो मुझे बहुत यंग एज से बहुत इंटरेस्ट रहा है. मतलब तब तो मैं बुक्स पढ़ा करती थी न्यूमरोलॉजी Yeah. की, और वो सब पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों में मुझे बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट हुआ करता था. Right. बट Right. मैं फिर मेरा मैरिड पीरियड निकला तो मैं पूरा फंसी हुई थी उसमें, एंड All right. स्ट्रगलिंग रही. और फिर उनको हेल्थ इश्यूज बहुत हुए, जिसकी वजह से मैं रेकी में गई, बिकॉज आई वाज फेड अप Understood. ऑफ मेडिसिन. मैं थक Yeah. गई थी मेडिसिन से. तो Okay. मैं, मेरी सिस्टर रेकी करती थी, तो शी यूज्ड टू सेंड मी रेकी फ्रॉम दुबई. That's okay. So now I just request you see, this is just a 1 hour session. We want everyone to be benefited. So ask any question that you have in your mind. मैम मैंने क्या हुआ कि मेरे साथ क्या होता है, जब मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ कार्ड्स को इंटरप्रेट करने की, तो जैसे सपोज ऑब्वियसली स्टार्ट तो देखो आपको कार्ड के मीनिंग से ही करेंगे ना.
ठीक है, इंट्यूशन भी वर्क करेगी, स्टोरी बिल्डिंग भी आनी चाहिए, बट स्टार्टिंग तो कुछ तो स्टोरी आप बिल्ड, मैं वही बोल रही हूँ। इसे क्या हो रहा है ना कि आपने जिससे सीखा है वो कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग हियर, आई विल नॉट बी एबल टू ऐड वैल्यू। बी स्पेसिफिक एंड आस्क क्वेश्चन, बिकॉज हर एक का टीचिंग मेथड अलग रहता है। तो मैम बिकॉज आई अभी डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टोरी बिल्डिंग, ओके बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई टीच। ओके So ask specific question that you have. Or in मैम general, if you want to know कि how interpretations are done. ओके, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि नाइट ऑफ कप्स जो कार्ड है, Hmm. अगर वो किसी रीडिंग में आता है तो Hmm. आप उसके लिए क्या बोलेंगी? Okay. Do you genuinely have this question or just for the sake of asking you're asking? Do you genuinely have this question, Knight of Cups? एक्चुअली दिस कार्ड, मतलब Hmm. मैं इसको ना ब्लैंक हो जाती हूँ इस कार्ड ठीक पे। है, तो आपके हिसाब से नाइट ऑफ कप्स का मीनिंग क्या है? मैम बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स का मीनिंग एक्चुअली लर्न ही नहीं हो रहा है। आई एम नॉट टू So, मेमोराइज। mostly, first of all, I before answering your question, I would like to throw some light on the points that you have been mentioning. Okay. So, first of all, ये जो point number 1 है ना कि आपको कुछ याद रखना है, मेमोराइज करना है, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी अ हॉर्स, व्हाइट हॉर्स, तो ये तो याद रखना है ना कि व्हाइट हॉर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, नहीं येलो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब कुछ याद ही नहीं रखना, तो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कैसे? नहीं, मैं वही बोल रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि आपने जिस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है और जिस तरीके से मैं सिखाती हूँ, इट इज टोटली अपोजिट। ओके, तो फिर आपके सभी क्वेश्चंस ना शायद इसमें आंसर नहीं होंगे, बट आई विल गिव यू जनरल पर्सपेक्टिव वॉट एवर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग जो आपने अभी तक शेयर किया। पॉइंट नंबर 1, जैसे कप्स का जो कप्स के कार्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कप्स? वाटर, ओशन, वाटर, राइट? सो वाटर, सो एलिमेंट कौन सा है? वाटर है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वाटर? इट कीप्स फ्लोइंग, राइट? अगर आपने बॉटल में डाला तो बॉटल का शेप लेंगे, कप में डाला तो कप का शेप, या इट्स अ फ्लोइंग, इट्स अ फ्लूइड, इट्स अ फ्लूइड। सो जब पूरा सूट ऑफ कप्स जो है, इट इंडिकेट्स ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग योर हार्ट। जस्ट लाइक इमोशंस जैसे फ्लूइड है, तो वाटर है। अंडरस्टैंड, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई वन एस्पेक्ट, कि अगर मान के चलो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मान के चलो यू आर क्रॉसिंग द रोड और आपने देखा नहीं पीछे से कुछ आ रहा है, तो मैंने बोला, ऐसे मैंने क्लियर, ऐसे मैंने दिखाया, मान के चलो, ओह ओह हे आई एम डूइंग दिस गेस्चर। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं? जाओ, रुक जाओ। करेक्ट। नाउ वापस से सेम ले लो सिनारियो, और आप क्रॉस कर रहे हो और मैं आई एम जस्ट शाउटिंग टॉप ऑफ माय, स्टॉप, डोंट क्रॉस द रोड। यू विल अंडरस्टैंड, राइट? राइट। थर्ड सिनारियो ले लो, यू आर क्रॉसिंग द रोड और सडनली किसी ने आपका हाथ पीछे से पकड़ लिया, खींच लिया पीछे। ये तीनों जो सिचुएशंस है, दे आर आस्किंग यू टू नॉट क्रॉस द रोड। सो अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ जो सिंबल्स है ना, जो कप्स के सिंबल है, व्हाइट हॉर्स है या किसी का थ्रोन है या स्टार्स है या क्राउन, एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट द सेम थिंग। यू अंडरस्टैंड? तो सिंबल्स जो है, इट कुड बी द रेड सिग्नल, रेड सिग्नल्स विच इज फ्लैशिंग कि नो, अभी आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको रुकना है, इट्स द सिंबल। बट मैम ये भी तो लर्न ही करना पड़ेगा ना, ये जो सिंबल्स, कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट करेगा, ये भी तो एक तरह का मेमोरी में तो यही बोल रही थी, प्रॉब्लम वही है कि हाँ। आपने जिस तरीके से टैरो कार्ड्स रीडिंग को अप्रोच किया है, बहुत सारे फाउंडेशन रहते हैं। ओके, व्हाट इज द फाउंडेशन, व्हाई वी आर लर्निंग? Okay, we want to learn tarot card reading because we want to connect with the universal energies. We want to help our clients. Okay, तो आप इवन मेरे मेंटर ने भी यही बोला कि आपको एक सेकंड पॉइंट पर, लिसन, आप यहाँ पर हो, लिसन, आप लिसन प्लीज, आप आपके मेंटोर के बारे में बात मत करो, आप आपके डाउट्स के बारे में बात करो। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके ओके ओके, एंड
जैसे सिर्फ मैंने listen to me for just for a second, listen to me. जो मैंने 3 ऑप्शंस आपको बताए, 4 ऑप्शंस, किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, मैंने हाँ किसी ने बोला कि डोंट क्रॉस द रोड, और किसी ने बोला ऐसे गेस्चर किया, और किसी ने रेड सिग्नल, सबके ठीक मीनिंग है, सेम ही है. सो व्हेन यू सेम अंडरस्टैंड एट अ जनरल लेवल कप्स के मीनिंग यही है, तो हर एक कार्ड का ये मीनिंग क्या है, सिंबल्स के मीनिंग अलग और कार्ड के मीनिंग अलग ऐसे नहीं हो सकता. You है. understand? Each and every symbol will reflect the same thing. Okay. ओके. सो अभी आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ना कि अगर मैं एक किसी सिंबल को मिस करूं तो शायद मेरा इंटरप्रिटेशन गलत होगा. ऐसे नहीं है. Okay. इसलिए stick to this point only what we are discussing now. Okay. Stay there. These are the free sessions. You can, whatever questions you have, you can ask later. Yeah. That's why I joined. With the name, I thought ki maybe, they're going to just clarify the doubts. Correct. So that's the intention, because I'm very passionate about it. And I'm very serious about teaching the tarot cards in the way it needs to be taught. Not like the storytelling. ये बहुत लोगों से मुझे पता नहीं क्या स्टोरी बनाना है, मुझे समझ में नहीं आता है. मुझे people get stuck in symbol में क्या है. अगर मैं आपको बोल रही हूँ डोंट क्रॉस द रोड और रेड इधर सिग्नल भी है, तो सबका मीनिंग एक ही होने वाला है. व्हाई आर यू गेटिंग स्टक कि कार्ड्स में अगर 25 सिंबल है तो एक एक सिंबल का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए? ऐसे नहीं. इट्स अ थीम एंड द स्टोरी. अगर मुझे नहीं पता कि कौन सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, बट इवन आई कैन टोटली रिलेट. अगर इफ दे आर यूजिंग द वर्ड स्टोरी, दे मीन थीम ऑफ द message, the crux of the message. Not the stories means you have to cook in your mind. Okay. It is the theme of the energy. So Knight of Cups, King of Cups, सब emotions के ही cards है. ये थीम है. So अगर Queen of Cups में थोड़ा एक सिंबल ज्यादा हो गया और आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे क्वीन ऑफ को इंटरप्रेट करने को नहीं आ रहा, ऐसे नहीं है. एवरीथिंग लिंक्ड. मतलब मान के चलो एक कार्ड इमेजिन करो. So I'll give you विजुअल पिक्चर. एक कार्ड इमेजिन करो जिसमें लिखा है डोंट क्रॉस द रोड. उसके कार्ड के पीछे रेड ये है, सिग्नल ऑन है. ओके. उसमें क्रॉस सिंबल है. यू अंडरस्टैंड? उसमें क्रॉस सिंबल है. और क्या मैंने बोला, हाँ, कि somebody is actually pulling you. तो ये पूरा है, ये है. तो अगर आपको एक भी सिंबल क्रैक करने को आता है तो you know the meaning of the card. और instead of going into cracking the codes, हम लोग कोई पुलिस नहीं है. Investigate नहीं करना है. In general, if you understand the theme of the card based on the words, based on the image, now you're getting what I'm trying to say. It's not a story. Even if you मान के चलो पूरे कार्ड में जो वर्ड्स आपको मान के चलो हिब्रू वर्ड्स है कि डोंट क्रॉस द रोड, आपको नहीं पढ़ने को आ रहा है, छोड़ दो. बाकी के सिंबल्स है ना. ट्राई टू connect with these symbols, or in general, catch the main point. Basically, you're trying to say. But in general, Catch the main point. In general, try to understand the theme of the card. Theme of the card. Probably theme is the right word than the story. I don't know. It's my perspective. Okay. Ma'am, one point I have in mind. Memorizing, okay. You say memorizing is not important and you don't have to go into everything, each and everything. ठीक है, ऐसा है ना. Intuition. हाँ, ऐसे एवरी टाइम कैसे होता है कि अगर मान के चलो जब भी अभी आप मान के चलो आपने अपना टैरो का कोर्स कंप्लीट कर लिया, whenever you do reading ना, go back and read the meaning. I used to do that. मेरे टैरो के नोट्स, तभी तो ऐसे ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था, प्रिंटेड नोट्स बुक्स मेरे सामने रहते थे. मैं रीडिंग कर रही हूँ क्लाइंट का या मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, 3 कार्ड्स निकाले. I used to spend 1 hour to interpret 3 cards because I used to go back to the notes. If you keep going back to the notes, memorize automatically. It will हो जाएगा. Okay. Ma'am, एक छोटा सा question है बीच में. Last question, please, because I have to give other people also chance. Because it's just a 1 hour session. Okay. Ma'am, जैसे memorizing according to you also is not important, but intuition कितना परसेंट आप उसको बोलते हैं कि वही मेन है? I won't tell you the percentage wise, but overall the game of tarot card reading is all about how well you understand client situation, how well you can decode your client situation. You have to come up with a meaningful questions.
Okay, and then you have to ask questions to the universe. अगर मैं आपको पूछती हूँ कि when will I get married, आपको same question cards को नहीं पूछना है. What if I don't have intention to get married? I'm just casually asking. राइट सो इसको बोलते हैं टैरो क्लैरिटी फ्रेमवर्क. और जो मैंने वो मेरे कोर्स में दैट्स माय वे ऑफ टीचिंग माय स्टूडेंट्स, वो मैंने कोर्स में मैम डाला. थोड़ा सा ग्रुप में आप अपने कोर्स का भी डालिएगा, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुई हूँ आपसे, तो मुझे अच्छा कुछ अच्छा पता हाँ. नहीं है आपके सिर्फ बारे में. ग्रुप का इंटेंशन की कोर्स प्रमोट करना है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, पर बट लेकिन स्टिल जस्ट डेफिनेटली आई फॉर विल We'll, पुट इन्फॉर्मेशन, इट. yeah, we'll जस्ट keep फॉर doing that, इन्फॉर्मेशन. Sethi ji. In the group, of course, related to the course, related to other learning materials as well. We'll keep sharing that. So आज ये आपका first session है. मैंने कल ही ज्वाइन किया है Yes, ग्रुप. इसीलिए. So ये we have हाँ. been doing this यस for पूनम, आई विल कम टू यू. yes, for almost a month we've been doing this and we'll continue या to do it. So what we'll suggest you be in the live sessions here and you'll start getting some perspective about the approach to learning ओके. tarot. वही ओके, हमने देखा थैंक है, यू. a lot of misconceptions are there, a lot of myths to be busted. So all of परफेक्ट. those things, once you are here in the session and you start getting conditioned to how tarot actually Then works, you will really get yeah, prepared for the course. This is what exactly. my perspective is. वैसे भी आई एम नॉट इन अ हरी टू गो फॉर Hmm. रीडिंग, Correct. Yes, मतलब yes, दैट इज नॉट माय एम. sure. ओके, So थैंक. Poonam ji or Nivedita, I think you had raised your Yes. hand. Yes. Yes, पूनम, आप म्यूट पर. आप अनम्यूट कर सकते हैं. Yep. Yes. Yeah. Good morning. No, good afternoon. Okay. I wanted to ask that if the client comes with Yeah. the mixed mind, हाँ. they just want to play with us. You got me? They want to check us. हाँ. Does it happen anytime that they Yeah, don't yeah, have it any happens. It questions, but happens. say they try to ask the questions which are not when the card comes and we say them, but then they want to try on us. Let's see how check on us. You got me? I agree. I There's agree. nothing like that, but they want to create a situation or ask something. So does it? How come we know that to catch this kind of thing? पॉइंट नंबर नहीं, Because आपका sometimes the क्वेश्चन बहुत अच्छा है. सो आई विल शेयर माय पर्सपेक्टिव ऑन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you're already practicing tarot card reading, you should also have knowledge about energy science. Energy science means how do we create future. So for example, अगर आप अभी घर से बाहर निकलते हैं, whether you're stuck in the traffic jam or not, it is your future. Okay, whether you'll be stuck or not, that will be a future experience. But how do we attract it? You should have the perspective. Okay, try to understand why I'm just sharing the background. Now just go back to any situation in your own life when you were confused. For example, okay. छोटी छोटी चीजें, should I buy red dress or yellow dress, or should I major life decisions, should I marry this boy or this boy, or should I leave the job now or later. When you are confused and when you are asking people, you always attract mixed opinions. Have you noticed? I'm asking everyone. I'm not just talking to Poonam. Please, everybody, please participate. I just want you to understand certain concepts which are definitely related to tarot card reading. But हम लोग tarot card reading isolation में देखते हैं, silo में, वैसे नहीं होता है, right? So when our energy is split, we attract more and more situations wherein we will invite doubt. When we are not sure, okay, when we are not sure, universe will keep on presenting more and more situation in which we will not be sure. So if we have this vibration going on, people may come and test us, or if we have a fear, what if for example, if I'm holding a fear, what if I fail? What if I fail? The chances of failing is quite high. Okay. Because when you ask me something and the card show me something, right? And your question is that, and you are playing with me, for example. And when I turn the I am card, setting up a foundation, Poonam. Don't jump to tarot card reading directly. Point number one, why are you attracting these kind of situations? Correct. Sometimes you never know people do that. So Correct. So Point you is get that scared. point. So मैं वही बोल रही हूँ. So Poonam, before I ask this, before I answer that question, कि how should you deal with such kind of a situations, there is immense need for you to understand why are you attracting these kind of a clients to you. Are you getting my perspective? I'm trying to clarify that. Now, and I Yeah. understood.
Okay, so point is that you want your clients to trust you. Okay, so for example, you Yes. want mirror to reflect smiling face, but if you are crying Yep. and standing in front of the mirror, mirror is going to reflect crying face. So Yep. anything which happen with us, be it good or bad, it's a reflection of our energy, not about our intentions, but the energy. Intention, आपके intention अच्छा है, आपको client को help करना है, that's your intention. But the energy is, oh my God, what if ऐसे होगा तो होता है. Yeah, your belief कि yes, there are people who will come and test you. This belief will attract this kind of this perspective is very Ah, important to you. Okay, okay. fine. So now coming to the actual situation कि ठीक है होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ है. और क्यों होता है? When I introspected, जब भी मैंने फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड रीडिंग सीखा था, I was new, right? So I always had this fear of going wrong. What if I go wrong? I had a good intentions of helping people, but at the same time I had a fear in my mind, what if I go wrong? So definitely, this universe is not going to respond. Universe will respond to my energy. What if I go wrong? Go wrong. So definitely, I will attract clients who will test me, and I'll go wrong, and so on. Okay. Now, how to So handle that the what we situation? feel, what we Correct. feel, what we That's what fear, we that feel. comes. मैं वही बोल रही हूँ कि टैरो before you go touch the cards, there are many other things that you need to deal with internally. टैरो कार्ड रीडिंग इज Okay. 78 कार्ड्स के बियॉन्ड टैरो कार्ड रीडिंग है. ऑल राइट. सो नाउ अगर मान के चलो ऐसे क्लाइंट आता है आपके पास, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्यूशन, so I would just share one thumb rule. When you'll feeling heavy here, it means there is something wrong. Whenever you're feeling light, अगर मान के चलो, if I come to you and I have a very pure energy, चलो यार मुझे बताओ ना क्या करना है, तो you'll feel the lightness. But if I come to you with lot of suspicion कि या doubt या दे चलो इसको मैं टेस्ट करती हूँ पूनम को, तो you'll feel heavy in your heart. Okay. Okay, तो आपको पता, so you know कि okay ये client ऐसा है, तो that time you know what, as you have to tell client, ठीक है, I will answer your question, but before that, is it okay if I pull cards as a general guidance for you? या उनको ऐसे भी Okay. बोलो कि इट इज, मैंने ऐसे ही हैंडल किया था व्हेन आई सेंस्ड कि somebody came to test my knowledge. I got very uneasy, so I closed my mind, मैंने shuffle किया, and suddenly ऐसे मुझे लगा कि चलो उसको ऐसे बोलते हैं कि this is my standard practice कि जो भी मेरे पास पहले आता है ना, पहले मैं उसको जनरल गाइडेंस की रीडिंग ही देती हूँ. आई डोंट नो उस Okay. टाइम वैसे हो गया, तो मैंने डायरेक्टली 3 या 4 कार्ड्स कुछ तो पुल किया. आई डोंट इवन रिमेम्बर, इट डेकेड्स अगो. तो so okay, and I share the general guidance. I acknowledge that this person is testing me, but I took an effort to raise my vibration internally. It's my inner journey, and still Okay. look at that person with a compassion and connected to the universe, angels. What message you would like to give to this person without any मतलब कोई specific question वगैरह नहीं, एक general guidance. And when I shared that, I spent 5 minutes sharing the general guidance reading. I realized that उनका energy बहुत light हो गया. And then Yeah. yes, They feel that they are caught, right? what? See, we have to go beyond Not that. caught. हाँ, Not caught, but yes, see, they मतलब can उनके sense लिए भी that aha okay, moment. Oh, okay, अच्छा, okay. I came to test her, but whatever she shared, it's right. she's that And these I'm people, tested. see what happens. These people may not show their body language will still be rigid, but we can sense the energy. थोड़ा सा lightness आ जाता है. थोड़ा चुप बैठते हैं लोग. Acha. Okay. So that is somewhere, you get you get the fear that when you are doing do the reading for anyone, that you only first feel that why the So when questions are you being doubt asked. here, in Nahi, general also, see, question in kuch. general also, Poonam, I would like to add this point here. It's very important. Forget about the client is coming to you, whether he's testing you or not. Even if in general, कोई normal client भी आता है आपके पास, and if you feel you're not ready, start up with a general guidance. बहुत You फायदा know what होता है. happened? It's a personal experience that I was just trying them to say that I do to practice tarot and all that. So they wanted to make up. Every person is not like that. They wanted to make fun of that, and they asked me, "Oh, okay, so we can come and ask anything." So I say, "Yeah, you can come and ask if you have some difficulties and all that." And then she's saying, "Yeah, yeah. So even we can understand, what solutions you are giving." You know what I said?
I just, at that moment, the question came in my mind. I just told them that you never know, you want to hide something and the card will show me that. Then they got scared. Because I said, you might be Nice. hiding something, but the card is very honest. Yeah. They will show me Perfect. something that what you are hiding. And then they said, Perfect. oh, they were Very trying nice. to pull my leg. Yeah, And that's this the is what smart I way of handling. replied. Yeah, that's So they the thought very that, smart yeah, way this of is the handling. dilemma now. Yeah, but so I would suggest that whenever you're facing doubt or ऐसे, तो ask universe first of all. जैसे first part before I answered this part Yep. where I told you how to handle, okay, जो पहले वाला part मैंने आपको explain किया कि why are you even landing up in a situation where you are surrounded by such people? Try to work on that. That will be a better That's easy true. thing. That's Ask true. universe to give you more people, Sometimes your own besties, no, this group of friends, it's and they okay, try whatever to it do. is. Yeah. In one of my webinar, I had shared that. This is not a webinar, but in one of my webinars, I had shared कि ऐसे होता है कि हम लोग को लगता है कि बेस्ट फ्रेंड से सब लोग सब शेयर करेंगे, लेकिन नहीं है. So yeah, it happens. It's our journey. I'm telling you, when you learn any spiritual science or any occult science, it's not about just learning it. Like I'm learning tarot, but it's your inner growth journey as well. So you cannot, मतलब उस पे ऊपर से ही फोकस कर रहे हो, सिर्फ टैरो के ऊपर फोकस कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है. So by handling this tricky situation, you're going to grow as a person. Have that perspective. Okay. Also keep asking why Okay. I'm attracting this kind of a situation. Oh, Yeah. निवेदिता thank आपको you. कुछ, yeah. निवेदिता आपको कुछ क्वेश्चन था? हेलो मैम. मैम मेरा एक क्वेश्चन बहुत दिन से है. ये बताइए कि क्या रिवर्स कार्ड रीडिंग भी होती है? See, there are many teachers who teach reverse card reading. It's a very common question. It's a very good question, Nivedita. But लेकिन my perspective is that कि मान के चलो जो 78 cards है ना, उसमें हर एक इमोशन ना बहुत ब्यूटीफुली दिया गया है. Like happiness, sadness, joy, success. Okay? तो पॉजिटिव इमोशंस भी है, नेगेटिव इमोशंस भी है. तो आपको पॉजिटिव कार्ड रिवर्स करके उसको नेगेटिव क्यों इंटरप्रेट करना है? सही में यही Instead मुझे of, भी लगता है हाँ, कि करेक्ट. ये तो हमारा फॉल्ट हुआ ना रखने में. नहीं, सी लिसन, फॉल्ट नहीं है कुछ रखने में, कुछ फॉल्ट नहीं. I'll share 2-3 reasons why I don't teach reverse card reading. Point number 1, कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लॉजिकल कि कार्ड का जो स्प्रेड है 78 कार्ड्स है, उसमें पॉजिटिव कार्ड्स भी है, नेगेटिव कार्ड्स में भी है. अगर यूनिवर्स को कुछ आपको नेगेटिव मैसेज हाईलाइट करना है, तो वो यूनिवर्स विल गाइड यू टू पिक नेगेटिव कार्ड. यस. ओके, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. ओके. पॉइंट नंबर 2, मैं भी कंटिन्यू. हाँ. सो पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स कार्ड रीडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. Okay, point number 3 is that ki, what you say, every card. So I teach my students in a such a way that every card, even if they take the best, सबसे बेस्ट कार्ड कौन सा है, सबसे बेस्ट पॉजिटिव कार्ड्स कौन सा है, लाइक वर्ल्ड हो, एम्प्रेस हो, जो भी कुछ है, हर एक कार्ड का ना एक पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है. व्हेन यू आर लर्नड टैरो कार्ड रीडिंग इन अ सच अ फैशन, कितना भी अच्छा कार्ड आता है तो उसका नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है, पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द स्प्रेड दैट यू आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा है कि निवेदिता के ना पॉजिटिव साइड्स क्या है पर्सनैलिटी के, और कोई कार्ड्स आते हैं, ओके, अगर मान के चलो 5 ऑफ कप्स कार्ड आ गया, तो 5 ऑफ कप्स कार्ड देके थोड़ा सैड फील होता है, राइट. बट मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन कि निवेदिता के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है पर्सनैलिटी के. अगर वो ऐसे एक सवाल पूछ के, अगर यूनिवर्स इज गिविंग मी 5 ऑफ कप्स विच इज अ स्लाइटली नेगेटिव कार्ड, जैसे देख के ही होता है, बट आउट ऑफ 78 कार्ड्स यूनिवर्स में यही क्यों दिखाया, आई विल ट्रस्ट दैट. तो उसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट में ऐसे करूंगी कि निवेदिता कैन ओवरकम एनी डिसअपॉइंटमेंट्स वेरी क्विकली. शी कैन आराम से फोकस ऑन व्हाट इज राइट इन लाइफ, व्हाट इज गुड इन लाइफ, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. यू अंडरस्टैंड? सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन दैट वी आस्क एंड कार्ड्स वी पुल, और जो स्प्रेड्स करते हैं उसमें पोजीशन क्या है, उस हिसाब से हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे. सो वो इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है, वो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स बाय रिवर्स कार्ड रीडिंग. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. और मैम ये एक चीज और कि कार्ड हम किस सॉरी मतलब
कितने कार्ड निकालने हैं, किस टाइप से, कौन सा स्प्रेड करेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं? वो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, वो आंसर करना भी डिफिकल्ट है। पर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सिचुएशन हो, सो अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय कोर्स लाइक 3 स्टेप टैरो क्लैरिटी फ्रेमवर्क। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपको पूछा कि आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जॉब छोड़ू या दूसरा कंपनी में अप्लाई करूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो आई विल जस्ट कम एंड वेंट आउट। सो ये क्लाइंट सिचुएशन हो गया। तो एज अ रीडर आपको डिकोड करना है सिचुएशन इनटू अ लॉजिकल क्वेश्चन। और अगर लॉजिकल क्वेश्चन मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन लॉजिकली। अगर मैं बोलती हूँ आई एम इन अ डेस्परेट नीड ऑफ अ जॉब, ओके, तो अगर आपने मुझे पूछा, यू सॉट मोर इन्फॉर्मेशन, और मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे आई एम टेकिंग एफर्ट एंड एवरीथिंग, तो आप लॉजिकली डिसाइड करोगे कि ठीक है, चलो 2-2 महीने के लिए मैं एक कार्ड पुल कर रही हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू अंडरस्टैंड क्लाइंट सिचुएशन। मैं वही बोलती हूँ ना, टैरो कार्ड रीडिंग लॉजिक भी है। पहले तो क्लाइंट का सिचुएशन समझना, उसको लॉजिकली डिकोड करना, और लॉजिक यूज करके यू कैन डिसाइड कि कितने कार्ड्स पुल करना है, कौन सा स्प्रेड करना है, कौन से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे डायमंड स्प्रेड होता है, लवर्स स्प्रेड होता है, ये होते हैं। स्प्रेड्स तो बहुत है। पॉइंट इज दैट, सी सो फर्क क्या है पता है निवेदिता जी की, अगर मान के चलो कि अगर मैं कोई डॉक्टर के पास जाती हूँ, जैसे हम लोग ना, देखो नॉर्मल फीवर आता है तो हम लोग को पता है कौन सी दवाई लेना है। हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, डायरेक्टली फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। इट्स स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फीवर आया है तो क्रोसिन ले लो या वट एवर, ले पैरासिटामोल, वो ले लो। यू अंडरस्टैंड? सो ये जो स्प्रेड्स है ना, इट इज जस्ट लाइक दैट, गोइंग टू द फार्मासिस्ट, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो सबके लिए काम करेगा, टू अंडरस्टैंड अ जनरल थिंग। बट डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, ओके। आपको भी फीवर है, मुझे भी फीवर है, पर लेकिन जो भी आपका अलग हेल्थ कंडीशन है, उस हिसाब से डॉक्टर नोज कि शायद ये दवाई नहीं, इसका डोज ये चाहिए, उसका ये चाहिए। तो खुद के स्प्रेड्स कैसे डेवलप करना है, उसको ही मैं बोलती हूँ मेरे कोर्स में 3 स्टेप टैरो क्लैरिटी फ्रेमवर्क, जिसके मैं स्टैंडर्ड स्प्रेड्स इज डिफरेंट, स्टैंडर्ड स्प्रेड्स में सिखाती हूँ, पर लेकिन मेन थिंग कि अगर आपको क्लाइंट को सच में हेल्प करना है, तो आपको टैरो क्लैरिटी फ्रेमवर्क जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो पता होना ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि ओके, मैं अगर यही जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा कि क्या करूं करियर का ऐसा ऐसा है, तो कौन सा स्प्रेड करोगे आप? अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो यू आर नॉट बीइंग अ डॉक्टर, यू आर बीइंग अ फार्मासिस्ट। आपको समझ में आ रहा है guys? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर वी ऑन द सेम पेज, राइट? एम आई मेकिंग सेंस टू यू निवेदिता जी? यस यस मैम, आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और अभी तक मैंने बहुत सारी वेबिनार अटेंड किए हैं। एक्चुअली मैं वेबिनार से ही पढ़ रही हूँ, कुछ है प्रॉब्लम जिसकी वजह से अभी कोर्स नहीं कर सकती। केवल हाँ, ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि यहाँ लोग पूछते हैं कि आप कोर्स का डिटेल फीस क्या है, आप बताते ही नहीं हो। वरना तो पहले दूसरे दिन में ही सबसे पहले तो यही आ जाता है कि मतलब आपने कोर्स बता दिया, उसका डिटेल बता दिया, उसके बाद आपको बंद हो जाएगा, नॉलेज देना बंद कर देंगे। कुछ लोग तो बंद ही कर देते हैं, वेबिनार ही बंद कर देते हैं। अगर 2-4 मिल गए नहीं नहीं, कस्टमर्स के बाद वो वेबिनार तो बंद हो जाता है। एग्जैक्टली यही मैंने बहुत कुछ देखा है, एंड आई एम वेरी पैशनेट, मतलब मेरे पर्सनल लाइफ में आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आई अब आप ये समझिए कि गॉट हम इनटू लोग दिस। 2 वीक वेट करते हैं कि कब आएगा और कब क्वेश्चन पुट अप करेंगे, अपना रखेंगे, निकाल सो करके क्यूट, रखे रहते हैं। थैंक यू सो मच। सी, सो आप ये बोल रहे हो ना, आई थैंक एम यू, जस्ट यू वेरी टू मैम। सेटिस्फाइड, बिकॉज यही हमारा इंटेंशन है कि, इसलिए देखो हम कोर्स कोर्स प्रमोट करना होता तो हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं। क्योंकि यस यस। आई एम व्हाट इज द डिफरेंस, नॉट डिफरेंस से, मेरा अप्रोच ऐसा है ना कि अगर टैरो रीडर्स बनाने हैं ना, तो बहुत ही कॉन्शियस और एम्पावर टैरो का रीडर बनाना है मुझे, तो यू शुड बी रेडी। वो राइट अप्रोच से आ जाओ। अगर आपको नहीं लेना है कोर्स मत ले लो, बट लेकिन अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो कोर्स लेके भी फायदा नहीं है, ऐसे। तो वो अप्रोच सही करने का आई एम ऑन द मिशन। बिकॉज क्या होता है ना, आई सी, अगर मान के चलो जो नॉर्मल लोग हैं जो अकल्ट साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते, आई रियली फील बैड फॉर देम। आई हियर सो मेनी केसेस कि टैरो कार्ड किसी रीडर ने ऐसे बताया, लेकिन वो आई गॉट स्कैर्ड। सो वो गैप जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे अगर हम लोग डॉक्टर के बारे में या एमबीबीएस हम लोग नहीं है, वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट मेडिकल फील्ड, तो इट इज इजी टू फूल अस, राइट? यस क्योंकि टू सेव लाइफ, तो पीपल हु डोंट हैव बैकग्राउंड of occult science, they are getting fooled nowadays, especially ये social media, इसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, I can't see that.
सो दैट इज द रीजन आई फील इट इज माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो अच्छे वो ऐसे ऐसे मैं स्टूडेंट्स क्रिएट करूंगी, ऐसे टैरो रीडर क्रिएट करूंगी जो बहुत ही एम्पावर्ड हो, कॉन्शियस हो, अवेयर हो, कि जो लोगों को मिसगाइड नहीं करे। दैट्स माई मिशन, दैट इज द रीजन आई क्रिएटेड दिस ग्रुप। अदरवाइज हम लोग भी रोज वेबिनार ले सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ पर्पस। थैंक यू मैम। या यस स्वाति, यस हाउ आर यू? हाय मैम, आई एम यस। फाइन। मेरे दो ही सवाल है। हाँ पहला ये कि हेल्थ रीडिंग कैसे करें, मतलब कुछ कुछ कार्ड जैसे आते हैं कि उसमें समझ में नहीं आता है कि स्वॉर्ड आ गया है या हाँ फिर कप्स आ गया है, तो फिर हाँ उसमें क्या बोलूं, मतलब कोई बोलता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, हाँ तो हाँ। ओके एक कोई सो एग्जांपल आप ओके सो अगर ऐसे स्पेसिफिक केस है दैट यू कैन डिस्कस, बट इन जनरल इफ यू वांट मी टू टेल, मतलब व्हाट यू वांट, कुछ स्पेसिफिक केस है आपके दिमाग में या क्या है? केस, मतलब ऐसे ही मुझे पूछते हैं कि हाँ मुझे बताओ कि मेरा हेल्थ कैसा रहेगा आगे फ्यूचर में, हाँ ऐसा करेक्ट। लोग तो पूछते अगर ये हैं। लोग, हाँ। अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि कैसा रहेगा मेरा हेल्थ, तो हम्म। तो पहले बताओ, इफ यू आर आस्किंग इन अ जनरल वे यू विल गेट जेनरिक आंसर। तो ओके। सीक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट। आपको कुछ हेल्थ इशू है क्या, स्पेसिफिक किसी के बारे में, ओके। स्पेसिफिक इशू के बारे में पूछना है क्या, इज देयर इज समथिंग ओके। बॉदरिंग यू? तो टेल क्लाइंट्स, इफ यू हम्म। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। आपको जनरल पूछना है तो मैं आई कैन टेल डेफिनेटली इन अ जनरल वे। ओके। ओके, तो ओके। अगर हेल्थ कैसी और रहेगी, दूसरा। कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ हाँ फ्यूचर हाँ। फिक्स नहीं है, तो बोलो कि आई कैन टेल यू हम्म। कमिंग 6 मंथ्स कैसे रहेंगे हेल्थ के लिए। ऐसे ऐसे नहीं कि ओके। क्लाइंट आपको पूछा आपको इमीडिएटली आंसर जोन में ही जाना है। यू हैव टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, यू हैव टू आस्क मोर क्वेश्चंस, ओके। बिकॉज फायदा उनको ही है ना। अगर मान के चलो, अच्छा। सी दे डोंट नो हम्म। हाउ दिस मोडालिटी वर्क्स, इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड मोडालिटी। सो यस रेस्पॉन्सिबिलिटी यस। लाइज ऑन आवर शोल्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको बेनिफिट करना है, मतलब इफ यू वांट दिस रीडिंग टू बेनिफिट यू, देन यू हैव टू बी स्पेसिफिक। और just be aware, if you are asking general question ओके। you will get a general guidance, general answers only, वैसे। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कोई मुझे मेजर कोई बीमारी होगी क्या, तो अभी ऐसा बोल दिया, और मतलब और भी नेगेटिविटी तुम खुद के ऊपर भी डाल रहे हो प्लस मेरे ऊपर भी डाल रहे हो कि ऐसा ऐसा आपके बड़ी ऊपर क्यों जैसे डाल रहे कोई, हो, आपके ऊपर क्यों डाल रहे हो ऐसे क्योंकि मिसकंसेप्शन में? रीडिंग इट्स करती हूँ मैं तो नॉर्मल कार्ड्स को स्वाति। पढ़ करती हूँ, हाँ तो फिर वो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ हो ना जाए क्लाइंट को, मैं नहीं चाहती किसी को हेरिटेज तकलीफ हो, और नहीं मुझे नहीं कोई नहीं, बड़ी listen बीमारी listen होगी तो classic, क्या करूँ। अभी देखो अभी ना, सी जस्ट गो बैक, यू नो, अ डेकेड अगो कैंसर केसेस इतने थे कि अभी कैंसर केसेस कितने हो नहीं गए? है, सो पीपल अभी बहुत डेफिनेटली हैव है। fear. So if they're expressing their fear, it doesn't mean that you have to buy their fears. They are not putting on you. They are asking कि बाप रे मुझे कुछ हुआ तो. So point number one, अगर वो ऐसे पूछते, it doesn't mean they're putting negativity on you. ओके, नीदर यू हैव टू टेक इट इन दैट वे कि मुझे कुछ कुछ नहीं होगा, इनका उनका फियर है यार, नॉर्मल। किसी भी इंसान को फियर होता है, व्हाट इफ लाइक मेरा एक्सीडेंट हुआ तो होता है कोई कोई ओवर थिंकिंग की वजह से। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो what is the role of a tarot card reader? Again, not a normal tarot card reader, but a conscious and empowered tarot card reader, to tell them कि ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ साइन सिम्टम्स है क्या आपको? नहीं है ना, सो इट इज जस्ट अ फियर। क्योंकि उनको ये बोलो होगा कि नहीं, ये टैरो कार्ड रीडिंग नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आपको नहीं भी होता है और आपका अगर मान के चलो 10 साल के बाद होता है तो इट विल बी टू फ्यूचरिस्टिक। टैरो कार्ड रीडिंग कैन गिव यू एक्यूरेट रीडिंग अप टू 3 to 4 years और 5 years, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गया। आपको ये क्वेश्चन ही क्यों पूछना है? डिस्करेज देम। ये वही बोल रही, अच्छा। क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा मतलब वही क्वेश्चन आपको कार्ड्स को पूछना है, ऐसे नहीं है स्वाति। They will come and then ओके, pour all their समझ गई। fears, insecure. That is okay. That's what they are there for. But that is the reason your knowledge about how we create future based on our thoughts. अगर वो पर्सपेक्टिव आप देते हो कि आपको ऐसे सोचना है, ये करो, अगर आपको ये नहीं सोचना, अगर आपको you know based on that you have to guide them. Yes. ओके। See, clients और are सेकंड seeking ये क्वेश्चन था कि मुझे solutions. दो तीन। Uh, just last sentence. Clients are seeking solutions. Whether you give it through cards or through your यस knowledge, they are not bothered. यस मैम। Yes. Sethi? सेकंड ये था कि लोग हाँ, बोलते okay. अब बताइए फ्यूचर में क्या होगा,
तो जो कार्ड आए और जो मैंने रीडिंग करके पता कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती है आपकी फ्यूचर, तो 2-3 टाइम में तो ऐसा हुआ है कि लोग बोलते हैं आपका कि ये आवाज मेरे ब्रेक साथ हो रहा हो है चुका स्वाति, है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, मतलब बहुत ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। मैम अभी आ रहा है? हाँ हाँ, दिस इज बेटर। हाँ। तो ऐसे क्लाइंट पूछा है कि क्या मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, तो जो कार्ड है मैंने वो सारा रीड किया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज आपके फ्यूचर में हो सकती है। तो क्लाइंट बोलते हैं कि ये मेरे साथ हो चुका है, ये पास्ट में हो चुका है, तो ये आप फिर से कैसे फ्यूचर तो में आई बता थिंक रहे हो आई कि ये थिंक यू चीजें हैड नहीं हो आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर एंड आई हैड टोल्ड यू कि सकती। जब हाँ भी आप हाँ। कार्ड शफल करते हो ना, तभी इंटेंशन प्रॉपरली सेट करो। नेक्स्ट 2 months, हाँ। नेक्स्ट 2 months, नेक्स्ट 3 months। इंटेंशन कभी बट कभी क्या होता जनरल है थोड़ी। ना, वी आर इन हरी टू जन शफल कार्ड्स, हम्म। वी आर इन हरी टू शफल कार्ड्स। सो अंडरस्टैंड कि ओके क्लाइंट ने पूछा है, इंटेंशन सेट करो। मार्च, अभी वी आर इन मार्च, सॉरी, सो अप्रैल 2025 व्हाट विल हैपन, अप्रैल 2000, रिवील द फ्यूचर, अप्रैल 2025, उस पर मेडिटेट करके, उस पर इंटेंशन एक्टिवेट करके कार्ड पुल करो। ओके। सब ये हमेशा थोड़ी ऐसे होता है। So it's, I'm telling you na कि it's not about just a cards. It's about your inner thing also. See, I want you to compare कि जब भी आपने कुछ भी रीडिंग क्लाइंट को दिया है, what were your state of mind? And जब भी कुछ ऐसे ऐसा है, what were your state of mind? What were the rituals you did do or what you did not do this time? Right? So मान के चलो, so मेरे कोर्स में मैंने प्री रीडिंग रिचुअल्स करके एक सेक्शन है। Before you even you touch the cards, there are rituals, मतलब not like puja or something, but it's about aligning your energies. अगर वो नहीं है तो क्वालिटी ऑफ रीडिंग अफेक्ट होता ही है। सो व्हेन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड, अलाइंड, हैविंग वेरी प्योर इंटेंशन कि जो सामने वाला है उसको हेल्प करना ही है, एंड आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम ओपन टू रिसीव, यूनिवर्स यू हेल्प मी, एंजल्स यू हेल्प मी, आपका रीडिंग रॉन्ग नहीं जाएगा। या यस सेठी, यू हैड सम क्वेश्चंस। यस मैम। या मैम अभी आपने एक एग्जांपल दिया था किसी को 5 ऑफ कप्स का पर्सनालिटी के लिए। हाँ मैम उसमें आपने ये कैसे समझा कि आपने कहा कि ये जो है पर्सनालिटी, ये बहुत कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ओवरकम कर जाएगी बहुत इजीली। ओके, आपने 5 ऑफ कप्स का मीनिंग पढ़ा है? हाँ जी मैम। क्या है कि मीनिंग, बताते हैं। मैम वो देख नहीं रहा ना उस तरफ, दो जो करेक्ट। कप्स। हाँ। हाँ, और जो गिरे हुए हैं उस पे ही पूरा उसका परफेक्ट कंसंट्रेशन। perfect, so that's the meaning of the card. Okay, राइट। so card meaning is different. ओके। Okay, interpretation is different. All ओके। right, so how does it work? That I have explained in my course Tarot Clarity Framework. कि whole, basically, do you understand how does tarot card reading work? It is a question based. Okay, राइट राइट। so now I want to know what are the positive sides of Nivedita's personality, and राइट। I connected with the universe, and universe में out of all 78 cards 5 of cups का ही दिखा है, और मैंने एक बहुत clearly question पूछा है कि positive sides of her personality reveal करो। ठीक है। राइट, सो ठीक। अगर वो कार्ड आता है तो प्लस फर्स्ट ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्ड का मीनिंग अलग है, इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। इंटरप्रिटेशन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, पर्सनालिटी, राइट। तो अगर मैंने राइट। ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव साइड का पर्सनालिटी क्या है, अगर ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही बोलूंगी कि शी हैज द एबिलिटी टू ओवरकम, शी गेट्स प्रोबब्ली, मतलब उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स है, आते हैं, पर लेकिन वो जल्दी ओवरकम कर लेती है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन क्या मैम बस पूछा है, इट्स अ मैम क्वेश्चन बस बेस्ड यही मॉडल। मैम बस यही चीज क्या होता है, जैसे आपने एक्सप्लेन की। अभी अभी आपसे मैंने कोर्स नहीं किया है तो मैं थोड़ा ज्यादा ओपन अप हो सकती हूँ। जहाँ मैं कोर्स कर चुकी हूँ वहां थोड़ा मैं ब्लॉक्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ, जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी समझ नहीं आया आपका प्रोस्पेक्टिव इस पर्टिकुलर कार्ड, और जो आप बोल रही हैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। All right. So, for example, go back to the road crossing का thing. All right. Road crossing का thing symbol is red light. All right. So now, अगर मान के चलो कि you are about to make you are on the verge of making very important decisions. आपको जॉब छोड़नी है और आपको रेड रेड सिग्नल आता है आपके लाइफ में,
Okay, is this a positive thing or a negative thing? No, it's a negative thing. Why it is negative thing? मैम वो बोल रहा है कि मत लो ये जॉब, ऐसा Correct. मुझे हाँ, हाँ मतलब जॉब नहीं छोड़ा या जॉब मत लो, so it's a red flag. What is the purpose of the red flag? मैम एक्चुअली रेड कलर कहीं ना कहीं हमको हमारी बचपन से ग्रूमिंग भी No, ऐसे ही listen, you're going too much into the red color. वो नहीं बोल रही हूँ. I'm generally, the red flag is the concept. Forget about the color. एक general concept. ओके एक general human beings we understand traffic signal red मतलब stop. हाँ Are you all with me? Yes. So right मतलब stop. General meaning है stop. वो color pillar छोड़ दो. This is how we are trained. okay Socially acceptable. Correct? Fine. So red flags मतलब stop. Don't go ahead. So okay जब ही stop बोलते हैं don't go ahead, it means there is a danger ahead. Whether we may right not know it right now, but it will, मतलब universe is trying to save us from certain things, right right? I So, understand so this yeah is how the interpretation is all about. एक but ही है, still एक ही इमेज but तो एक ही मैम है. मैम मीनिंग इस ये वाला तो इंटरप्रिटेशन समझ में पहले भी आया था बट वह वो नहीं आ रहा है कि उसमें आपको ये कैसे दिख रहा है कि वो See, point is ओवरकम that के सेठी अंदर आपको ना कैसे है ना एकदम ना हाँ 1+1 = 2 ये मैथ नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग, इट्स एन आर्ट. अगर आप कोई भी आर्ट एग्जीबिशन में जाते हो राइट जो तो मैम वो मे बी शायद ये तो नहीं है मतलब कि उस समय कार्ड उठा के जो आपका इंटेंशन बोले वो आपको बोलना है जो सी आपके पॉइंट इज अंतर दैट जब कहीं मैंने इनका 5 ऑफ कप्स का पर्सनैलिटी पॉजिटिव इंटरप्रिटेट किया, वो मेरा इंटेंशन है, इंट्यूशन है, इसलिए कि ऐसे नहीं है. दिस इज प्योर लॉजिक. ओके दिस इज प्योर लॉजिक. दिस इज प्योर लॉजिक. अंडरस्टैंड दैट. There are many things. मैं हमेशा बोलती हूँ, I don't know whether you're listening to this whole session or not because you're not मैम switching on मैम the सुन camera. रही हूँ नहीं नहीं हाँ, नहीं मैम मैं हाँ, सुन ठीक रही है, ठीक है. So मतलब मुझे नहीं समझ में आता. Anyways, good if you're हूँ listening. So tarot card reading is beyond 78 cards. उसके पहले कुछ concepts आपके clear होने चाहिए लाइफ में. कोई भी सिग्नल पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव ले, इट्स अ इंटरप्रिटेशन. मीनिंग तो इट्स अ थीम. मीनिंग मतलब इट्स अ थीम. अगर कोई भी कार्ड आपको गाइडेंस के, मान के चलो 5 ऑफ कप्स आपके, अगर आपको पूछती हूँ मैं कि आपने पूछा यूनिवर्स से कि क्या गाइडेंस मुझे आप देना चाहते हो, हियर मी आउट. आपने शफल किया कार्ड डेक और 5 ऑफ कप्स आया, तो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? दैट जो आपको आप मतलब मैं तो फिर वही उसी के हिसाब से बोलूंगी कि मुझे लगता है कि जो है आपके पास आप उसको देख ही नहीं रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है परफेक्ट, भगवान ने आप परफेक्ट, सिर्फ वो बैंग ही ऑन, देख रहे हैं कि जो आप खो चुके हैं परफेक्ट, या जो बैंग ऑन. आपके हाथ तो से निकल गई है हाँ, तो लिसन. सो जो मीनिंग है, जो हाँ मीनिंग है, ओके, मीनिंग हाँ क्या? मीनिंग इज न्यूट्रल. दिस इज हाउ द पिक्चर इज शोइंग. ठीक है ओके, पर लेकिन जैसे मैंने पूछा आपको क्वेश्चन की गाइडेंस क्या क्या आप एक्सट्रैक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड ए इंटरप्रिटेशन. जैसे आपने इंटरप्रेट किया अभी कि अरे भैया जो हुआ है वो छोड़ दो, जो रॉन्ग है हुआ है वो हाँ छोड़ मतलब दो. जो है उसको देख नहीं रहे हैं एंड करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. पर ये मीनिंग नहीं आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो. यू अंडरस्टैंड? आई कम टू यू एज अ क्लाइंट लास्ट 5 minutes. ओके, आई कम टू यू एज अ क्लाइंट और मैंने पूछा आपको जनरल गाइडेंस क्या है. जनरल गाइडेंस, ओके, तो आप बोलोगे कि चारुता, यू हैव बीन फोकसिंग मोर ऑन व्हाट इज रॉन्ग इन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ. बट सी कि देखो पीछे ब्रिज भी है, देयर आर सॉल्यूशंस अवेलेबल. यू अंडरस्टैंड? राइट There are still 2 cups are standing tall. So there are many good things happening in your life. Why are you not focusing on that? Why are you cribbing? This is how you will guide me. राइट Yes, fine. यस So now, so meaning is different. Guidance is an interpretation. So in my course, I have included guide, मतलब interpretation, मतलब अभी ये पर्सनालिटी के आप अगर इंटरप्रेट कर रहे हो, ये हेल्थ रीडिंग में आप इंटरप्रेट कर रहे हो, ये लव रिलेशनशिप में इंटरप्रेट कर रहे हो, ये मनी में इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट? तो इंटरप्रिटेशन कैसे करना है? सो मैम इंटरप्रिटेशन एक छोटा इंटरप्रिटेशन सा पॉइंट और पूछूंगी इंटरप्रिटेशन लास्ट लास्ट हाँ इंटरप्रिटेशन ऑलवेज टू इस पे होता है कि कंसिडर द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द कार्ड, नेगेटिव मीनिंग ऑफ द कार्ड, क्वेश्चन क्या है और कौन से पोजीशन पे वो कार्ड आया है. सो ओके इट्स अ गेम. गेम It's not the game in the sense, it's a game of art. First of all, logic.
इट्स अ क्लियर लॉजिक। तो मैंने क्या, मुझे निवेदिता के पर्सनैलिटी जानना था, मैंने लॉजिकली क्वेश्चन पूछा यूनिवर्स को, मैंने कुछ इंट्यूशन नहीं यूज किया है कि मुझे ना ठीक है। पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट जानने इनके पर्सनैलिटी के और नेगेटिव एस्पेक्ट जानने। मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछा सेठी कि इसका पर्सनैलिटी मुझे रिवील करो। ओके So this is the logic. This is how you have to simplify reading, simplify things for yourself. ठीक है मैम, Okay? एक लास्ट चीज पूछना चाहती हूँ Yes. बिफोर यू एंड। मैम जब आप पढ़ाते हो तो आप जैसे कोई एक कार्ड जैसे स्टार्ट करते होगे तो कार्ड्स लेते होगे, तो मैम कार्ड जैसे आप बताते हो तो उसी समय आप जिस कार्ड को भी एक्सप्लेन करते हो उसी में बता देते हो कि रिलेशनशिप के लिए अगर आया तो ऐसे और हाँ, कैरियर yes, के लिए आया yes. तो ऐसे। Otherwise, how will you understand? पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आएगा। तो अगर मान के चलो हमारे कोर्स में ऐसा है कि 5 ऑफ कप्स, अभी चलो 5 ऑफ कप्स की बात हो रही है आज, तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो स्क्रीन पर आएगा। ओके, 5 ऑफ कप्स का पहले मैं जनरल मैं पहले पूछती हूँ, फॉरगेट अबाउट द, सो आई क्विकली शेयर माय मेथोडोलॉजी। फॉरगेट अबाउट द टैरो कार्ड रीडिंग। आपको कार्ड में क्या दिख रहा है, कौन सी इमेज दिख रहा है, एज अ जनरल व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। या ओके, व्हाट यू ऑब्जर्व। हाँ, व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसका बॉडी हैप्पी है, सैड है, क्या है, जस्ट टॉक अबाउट दैट। ओके, वो मैं बताती हूँ। देन सिंबल्स क्या है, अगेन उसका मीनिंग सेम ही रहता है। आज के सेशन में वो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सो गुड कि वो पर्सपेक्टिव में बाहर आया, राइट? तो मैं उसका बताती हूँ। देन जनरल मीनिंग ऑफ द कार्ड। देन नाउ इफ दिस कार्ड अपियर्स एज अ जनरल गाइडेंस, क्या इंटरप्रिटेशन होगा? नाउ इफ दिस कार्ड अपियर्स एज अ पास्ट, क्या इंटरप्रिटेशन होगा? इफ दिस कार्ड अपियर्स एज अ प्रेजेंट, क्या इंटरप्रिटेशन होगा? इफ दिस कार्ड अपियर्स इन अ फ्यूचर, क्या इंटरप्रिटेशन होगा? इफ दिस कार्ड अपियर्स इन अ हेल्थ रीडिंग, क्या होगा? रिलेशनशिप रीडिंग क्या होगा? मनी रीडिंग क्या होगा? करियर रीडिंग क्या होगा? एक ही कार्ड को मैं पूरा फिनिश करती हूँ। देन ओनली आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, बिकॉज दैट्स हाउ द इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट। मीनिंग तो आपको गूगल सर्च करके भी पता चलेगा। मैम आपका जो कोर्स है वो एक ही लेवल है या एक ही लेवल है बाबा, एक ही लेवल है, कुछ ऐसे ये नहीं है। इट जस्ट अ वन कोर्स, जस्ट वन कोर्स, नो एडवांस बेसिक, इट्स जस्ट अ कंप्लीट पैकेज। We'll share प्लीज more आप about it. डालिए, हाँ डिटेल डाल दीजिए। Yeah, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सेशंस अटेंड कीजिए, डेफिनेटली एवरीथिंग अबाउट कुछ एक पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर अपकमिंग सेशंस में हम कोर्स के बारे में भी, व्हाट इट इंक्लूड्स, किस तरह से क्रिएट किया है, वो सब भी हम लोग आस्क मी एनीथिंग के एक पार्ट में इंक्लूड करेंगे, राइट? सो कीप फॉलोइंग। थैंक यू। We'll take one last question. yes, last question, quick. Please, if you can unmute yourself and also you can Switch on your cameras, please. because- Even if you are at home, it's okay. Yes. So PG, are you there? Can you hear me? Okay. Vinita and Akanksha. Or Akanksha or Vinita, any one of you? Yes, ma'am, I'm there. Okay, fine. I'm here, ma'am. Hello. Go ahead. You can Hello, ask. ma'am. Hello, dear. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है वो भी टैरो कार्ड रीडर है, तो एक बार बात हो रही थी, वो कह रही थी कि अगर हम किसी की रीडिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट हम पे आता है और हमसे हमारे बच्चों पे भी जा सकता है, ऐसा भी होता है क्या मैम? Oh my God, no. क्यों होगा, कैसे होगा, मतलब लॉजिक बताओ, क्यों होगा? मैम मेरे को भी बात समझ नहीं आप आई, भी बोली बताओ, इसीलिए रीडिंग बंद कर दी है। आप ही बताओ मुझे कैसे होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, नो डियर। अगर ऐसे क्या, हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, आप बताओ। ऐसे होता तो क्यों डॉक्टर्स प्रोफेशन बंद हो जाता है? ऑलवेज कीप कंपेयरिंग विद डॉक्टर, सर्जन, कम ऑन। कुछ नहीं, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी बॉस। अगर मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, आकांक्षा प्लीज हेल्प करो, आपने सच में हेल्प किया, आई विल रिमेम्बर यू फॉर एवर इन माई लाइफ, यू विल गेट माई ब्लेसिंग्स। क्या नेगेटिविटी आएगा आपको? ये बात भी That's सही है not मैम। मैम इससे ना थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि मेरे पास भी छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा ऐसा भी कुछ होता है क्या, मैं कंफर्म करूँ इस चीज को पहले। reason we are conducting this, ask me anything. एंड वन थिंग मोर नहीं मैम, होता। जैसे आपने ये बताया कि आपके कोर्स में ऐसे आप पढ़ाते हैं, तो उसमें आप क्या एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्शन या इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स और कौन सा कार्ड कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये सब भी बताते हैं क्या मैम? डायरेक्शन का तो इट्स अ जनरल, सी ये डायरेक्शन जो है, इट इज जस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन दैट क्लाइंट हैज। ओके, मेरे कोर्स में क्लाइंट को फायदा होने वाली सभी एस्पेक्ट मैंने कवर किया है। I teach you how you should do, what should be the ideal approach of reading. I teach you that. ऐसे। ओके मैम। तो मैम आपकी कोर्स की फीस क्या रहती है?
वी विल सेंड यू द डिटेल्स, क्योंकि ये पर्पज ही नहीं है कोर्स के बारे में डिस्कस करने का. वी विल सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप, वी विल सेंड यू ऑन द पीएम. ठीक है मैम, थैंक यू मैम, मुझे बस यही डाउट था, मेरे को बस यही क्लियर करना था अपना डाउट. तो मैं वही बोल रही हूँ, ये थिंक लॉजिकली, क्या होगा रे आपके बच्चे को. मेरा भी बच्चा है, छोटा ही है, 5 साल का है, कुछ नहीं होता है. He gets lot of blessings. You know, my clients get the chocolates for him. कि देव को दे देना. I get lot मैम of gifts मेरे for साथ my भी यही friends. होता है कि मेरे क्लाइंट मतलब पंजाब से स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं और मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं, पर मेरी फ्रेंड ने जब मेरे को ये बात कही ना, मैंने कहा यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैं कंफर्म करूंगी कहीं. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. डोंट वरी आकांक्षा, डोंट वरी, डोंट वरी. थैंक यू सो मच मैम. यस निवेदिता जी. मैम खुद की रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? या यू कैन डू इट एट अ, सो मैं मेरी खुद की रीडिंग करती हूँ, पर लेकिन इफ मैं बहुत ही थोड़ा लो फील कर रही हूँ तो आई अवॉइड इट. खुद की रीडिंग जब मैं करती हूँ ना, तो अगेन इट्स माई पर्सनल थिंग कि मैं आई ऑलवेज आस्क फॉर अ जनरल गाइडेंस. ऐसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं, आप कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं. पर लेकिन ऐसे होता है ना, वी आर टू अटैच टू अवर लाइफ सिचुएशन, थोड़ा सा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो आपके फ्रेंड को बोल सकते हो. तो आई आस्क माई फ्रेंड्स टू डू, और आई आस्क गो टू अदर रीडर्स ऐसे. पर ऐसे कुछ नहीं, आप कर सकते हो. यस यस, कर सकते हो. यस पीजी. Hi, ma'am. How are you? लास्ट, आई एम एक्सटेंडिंग बाय 5 minutes, क्विक. Okay. I want to know about the initials. Is हाँ. it true that tarot card helps you to get the perfect initials? ये इनिशियल्स ऑफ सारा हो गया. सब लोग बोलते हैं मैं आपको टाइम बताऊंगा, मैं आपको दिशा बताऊंगा, मैं आपको ये बता. I genuinely don't understand. परफेक्ट. इवन मी टू, मुझे भी नहीं पता क्या इनिशियल्स जानना है. They are merging numerology, astrology, and with the remedy they give Lal Kitab remedy. So Got it. it's So now, all like a khichdi, okay, dal khichdi. I will share my perspective. It's a very good question. So that is the reason मैं extend कर रही हूँ, because I really want you to all to understand certain things. So if I have as a reader, if I have a knowledge about numerology, tarot cards, astrology, what I'll be able to add more value to my client's life. Yeah. Have this perspective. It's really good. मतलब अगर मैं न्यूमरोलॉजी खुद प्रैक्टिस करती हूँ, अगर मान के चलो, अगर आप मेरे पास आते हो क्लाइंट, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से मुझे समझ में आएगा आपका स्वभाव क्या है. तो शायद आई विल नॉट पुल कार्ड्स, राइट. बट हर एक ना अकल्ट साइंस का ना कोर पर्पज रहता है. आजकल लोग सिर्फ रेमेडीज के बारे में बात करते हैं. रेमेडीज इज जस्ट 1%. रेमेडीज को जानना है तो आपको एनर्जी साइंस जानना होगा कि साइंस क्या है, कैसे फ्यूचर क्रिएट करते हैं. फ्यूचर फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है फ्यूचर, वो चेंज होता है. कुछ चीजें सब, यस, क्यों चीजों का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कुछ चीजों का पॉसिबिलिटी कम है. सो फ्री विल, डेस्टिनी बोथ एग्जिस्ट. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर आपके दिमाग में, दिल में एंग्रेव्ड है ना, तो यू विल नॉट बाय सच थिंग्स. ओके. नाउ इनिशियल्स, किसका इनिशियल्स जानना है, क्यों करना है ये सब, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. No, there are many like youngsters. Yeah. If you want, see, first thing, I believe that tarot is an art, agree, but everyone has for a business purpose. And wherever Nowadays. the niche is only young girls, young boys, they are more curious about their life. ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है मैम. आई अग्री. हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ. तो सो आई अंडरस्टैंड व्हाट आई डू. इसलिए ना न्यूमरोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो फिर ना सी, अगर कोई यंग आपके पास आते हैं ना, तो उनको ये बोले व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इनिशियल ऑफ योर, दे आर जस्ट क्यूरियस. दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म, दिस इज मोर सीरियस प्लेटफॉर्म. सिर्फ हाँ, आई एम जस्ट बीइंग वेरी क्यूरियस, मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर ना, कि उसका क्या होगा इनिशियल. दे आर जस्ट क्यूरियस. इज दिस, ये कितना 0.05 रोल है. Tarot card reading and the value that we add to the client, it's an ocean, and they're just talking about one raindrop. So you have to step into the role of a counselor and let them understand what is more important for you to know कि आपका शादी कब होगा. ये शायद पीरियड शायद से आपको हेल्प होगा. आपको कौन सा, जस्ट हियर मी आउट, आपको कौन से टाइप का लाइफ पार्टनर सूट होगा. मान के चलो आपका नंबर 1 है, तो आपको 2 का लाइफ पार्टनर है, उसका कंपैटिबिलिटी जानना मोर इंपॉर्टेंट है, या एस से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इट डजंट मैटर. मैरिज इज मैरिज अगेन. So you have to step into the role of a counselor and teacher and make them understand certain things. Because as a tarot card reader, it is very important
just to talk about the card and don't give another add-on value which people say. Why do you think so? Why do you think so? मतलब I don't understand this perspective at all. मान के चलो अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास, आपने बोला कि मुझे ना हेडेक है, और हेडेक का रीजन जो when doctor is decoding, he is understanding there is some issues with your stomach also. Is he supposed to hide? I don't understand कि ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आता है. Empowered and being a conscious and empowered tarot card practitioner, your role is to guide people. तो आपको जो भी नॉलेज है आप उसके अच्छे के लिए शेयर कर रहे हो, आप उसको पर्सपेक्टिव दे रहे हो. Ma'am, I have a question. My Ma'am, can I question is ask a question? that it is only pertaining to the card you have to say. That is my question. Yeah, add-on value नहीं देना है. That is the thing. मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा, आपका ध्यान था? हाँ, मेरा ध्यान था. I know. नहीं, I'm listening to you. Actually, I'm getting my ear. बोल रही हूँ, try to understand. मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपसे, काउंटर क्वेश्चन, it had a meaning. Are doctors supposed to hide things? If I'm a doctor, you came to me for another problem, but I'm able to understand there is something, कुछ तो है. शायद I will not give you a solution, but I will recommend कि ये दूसरे डॉक्टर के प्लीज जाके आओ, मुझे थोड़ा ये समझ में आ रहा है. See why people come to us, ये फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है. We understand why would you go to any tarot card, because you want solution, you don't just want reading. And why people and what is like how to figure it out. We are talking about 5 of cups. अगर यही चीज हेल्थ में आई तो how should we go with the energy of the card or how we should predict for a आपका जो क्वेश्चन है ना, अगेन अगर आपने स्टार्टिंग से पूरा सेशन मेरा अटेंड किया है तो यू मस्ट हैव गॉट द आंसर, बट अगेन आई विल रिपीट कि still I'm little confused. Yeah, मैं वही बोल रही हूँ. द पॉइंट नंबर 1, इंटरप्रिटेशन इज अ स्किल, interpretation is a logic, and that's exactly what I teach in my course. We call it as a 3-step tarot clarity framework. तो अगर क्लाइंट आता है आपके पास, पहले आपको क्लाइंट की सिचुएशन जाननी है, उसको मीनिंगफुल क्वेश्चन में डिकोड करो, एक एक क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्स को पूछो. अगर मैं पूछ रही हूँ कि ये मार्च मंथ में मेरा हेल्थ कैसे रहेगा और 5 ऑफ कप्स आता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आई एम आस्किंग एंड द कार्ड्स आई एम पुलिंग. Position of the cards, questions are this is how it is been done. Intuition बहुत बाद में आता है, पहले लॉजिक तो सही तरीके से हम लोग को इस्तेमाल करना है. We have to make our life simple. We have to add value to the client's life. So what is the role of logic or intuition in this? Like intuition will give you little more. Intuition will give you logic. तो फिर interpretation intuition कैसे आया? I didn't get that. Intuition तो हमेशा ही फ्लो होगा ही, बट डायरेक्टली आप 100% इंट्यूशंस पर आप डायरेक्टली बिलीव मतलब सॉरी रिलाई, डोंट गो एंड डायरेक्टली रिलाई ऑन इंट्यूशन डायरेक्टली. पहले जैसे डॉक्टर्स भी एग्जामिन करता है कि पहले इसका देखो, इसका समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी के भी चेक्स किए हैं, राइट. तो मैंने बोला अगर पूछा कि मार्च में मेरा हेल्थ कैसे रहेगा और 5 ऑफ कप्स आता है, तो मैं डेफिनेटली लॉजिकली इंटरप्रेट करके मीनिंग एसोसिएट लिंक करके मैं कुछ तो कंसर्न होगा, बट इंट्यूशन विल गिव मी समथिंग एक्स्ट्रा. ओके कि शायद आपके लाइफ में ऐसे होगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट यू मीनिंग ऑफ द कार्ड, बट रेलेवेंट टू इट. So for intuition also to work beautifully, you must have a solid foundation of logic, knowledge of the cards. Okay, understanding reading is an art. ये foundation strong अगर आपका है, okay, energy science का भी strong foundation है, तो intuitions ऐसे flow होंगे. Otherwise, you will get confused. You will get confused. Yes. Chalo. We'll have to wrap up, Vishal. Yes. Yes. You asked question. This is my phone. This is my phone. Who is that? Please. Yes, ma'am. This is Garima Dhawan this side. Garima Dhawan. Yeah. Yeah, ma'am. I just want to know. I just joined अभी right now. मैंने करना तो 11:30 था, but I'm really sorry. I just got occupied.
आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे हम लोग कार्ड्स जब निकालते हैं तो कई बार दोनों कार्ड्स ही पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हमें किस किस कार्ड को प्रेफरेंस देना चाहिए? अगर दोनों ही माइनर के कार्ड्स यस में आ रहे हो देन हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? No, sorry, I didn't get your question. Can you repeat? से रीडिंग कर रहे हैं किसी के लिए और 2 कार्ड्स आई टुक आउट, यस एंड नो, और दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं और दोनों हम्म, माइनर अरकाना है सपोज करो, या दोनों ही मेजर के कार्ड्स आ गए और दोनों पॉजिटिव है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी पहले? हाँ मतलब मेरा तो आज किसी का कार्ड था कि मेरा लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, दोनों वर हाँ पॉजिटिव, वही बोल रही हूँ तो आई गॉट डायरेक्ट। कंफ्यूज्ड। ऑफ कोर्स होने ही वाले हो कंफ्यूज। लव मैरिज हाँ, अरेंज मैरिज ये कॉन्सेप्ट कहीं बाकी के कंट्रीज में आपने सुने हैं? ये ये इंडिया इंडियन में ही है मैम। कॉन्सेप्ट है। फिर मैं उसको बोलूंगी नहीं भी लव कम अरेंज हो जाएगा जी आपका तो। ठीक है, आप वो कैसे भी हैंडल करो, द पॉइंट इज दैट हाँ कि बिफोर यू डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग yes and no question, हाँ okay, I always tell my clients what is more important, having a beautiful married life, be it love marriage मैम, or पर ये arranged नहीं marriage. सुनते मैम, नहीं सुनते ये दीज 20s की जो See, मैं किड्स है वही ना। बोल 20s हो कुछ भी हो, बट यू हम जैसे नहीं सुनते, वी कांट उनके लिए मतलब अगर आप बोल रहे हो कि यू आर ऑन, मान के चलो अगर मैं, आई एम नॉट टॉकिंग हम्म अबाउट यू, इफ आई एम ऑन अ डेथ बेड, आई एम हम्म बीइंग वेरी स्टबर्न कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, हम्म नहीं सुनते का क्या मतलब है? बट डॉक्टर विल डेफिनेटली टेल ये करना है तो करना है, गिव द पर्सपेक्टिव ऑलवेज। नहीं सुनते उनके लिए आप जो डेप्थ ऑफ द प्रैक्टिस है आप नहीं सेक्रीफाइस कर सकते, ओके। गिव द हम्म। पर्सपेक्टिव, नहीं सुनना है छोड़ दो, बट इट इज योर रोल टू सो द सीड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लव रीडिंग में यू कैन ऑलवेज, हाँ, रिगार्डिंग येस एंड नो का थिंक क्वेश्चन कि लव मैरिज या होगा अरेंज मैरिज हाँ होगा, जी हाँ जी। ये क्वेश्चन जो है ना, आई डोंट, मतलब ये मैं कभी पूछती नहीं हूँ, क्योंकि यूनियन, आई मीन मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। ये अरेंज मैरिज लव मैरिज जो है ना, दीज आर द ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट्स एंड वी आर डीलिंग विद द यूनिवर्सल एनर्जीज हियर, सो आई नेवर आंसर दिस क्वेश्चन। बट मैम अगर दे आस्किंग तो मैं उसको क्या आंसर दूंगी, जैसे दोनों तो पॉजिटिव आप कार्ड्स आ यही गए हैं। आपको एक्सप्लेन करना है, हाउ डज इट मैटर, यू कैन गाइड देम हाउ यू कैन अट्रैक्ट राइट पार्टनर, दैट विल ऐड मोर वैल्यू। वो डिसअपॉइंट होके हम्म नहीं जाएंगे। अगर आपको इनफ नॉलेज है, अगर यू शुड वॉच द वीडियो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट मेनी थिंग्स हियर, तो यस यस। यू नो देयर इज अ फ्यूचर इज नॉट फिक्स, वी हैव टू क्रिएट इट बेस्ड ऑन आवर थॉट्स। वो तो मैम कहती हूँ जैसे दे आर 2004-5 बॉर्न, मैं कहूंगी अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है आपकी, मे बी द एनर्जीज विल डेफिनेटली चेंज। द राइट नाउ यू आर इन लव, यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, मे बी आफ्टर एन ईयर यू आर नॉट इन दैट रिलेशनशिप। वी वेरी वी ट्रू, कांट से ना, मैं उनको वेरी यही ट्रू, बोलती होती हूँ कि दीज वेरी ट्रू, कार्ड्स आर करंट एनर्जीज, है ना, परफेक्ट। आई कांट कमिटेड कि You ये can't be साल भर current में आपका energy, but यही the आंसर future होगा। could change. So, but it can change. It can तो change, मैम ये definitely. एनर्जीज कितनी देर बाद चेंज होती है? जैसे पीपल जैसे कम एंड थॉट, आस्क मी। मान के चलो अगर आपको अभी आइसक्रीम खाने का मन है एंड 5 मिनट के बाद हम्म आपको मूड चेंज हुआ और आपको लगा कि मुझे केक खाना है, अच्छा, दीज आर इंस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग। उसमें कुछ ऐसे टाइमलाइन नहीं है कि इतने बाद एनर्जी चेंज होती है। कुछ चीजें बहुत स्ट्रांगली वी वांट इट, वी कीप वांटिंग थ्रू आउट द लाइफ एंड वी कीप गेटिंग इट और डोंट गेट इट, वट एवर। जितने ज्यादा ओके। ब्लॉक्स, मैं वही बोल रही हूँ ना कि यही द इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, these sessions is about educating people that before you jump into tarot card reading, do you have enough knowledge about energy science? Do you have enough knowledge about universe? How does the universe work? Yeah, how does human life work? What are the soul contracts? What are the pre-birth planning? Do you know it? Because we're connecting to the universal energy. मान के चलो अगर जैसे आपने लिखा है this is my phone, since I don't know your name and I keep telling everyone, Vishal, her name is this is my phone, हम्म अगर मैं ऐसे बोली तो I will go wrong, right? Because I have हम्म not taken any effort to understand what is your name and I'm telling people वो उनका नाम ऐसे ही, उनका नाम ऐसे ही, ऐसे नहीं होता है। तो दैट इज बिफोर यू टच द कार्ड्स, यू शुड हैव सम फंडामेंटल फाउंडेशन नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, ऑल्सो अबाउट हाउ टू गाइड पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम मुझे इसी चीज में कंफ्यूजन आ जाता है कई बार, दोनों कार्ड्स ही यस के होते हैं, मैं किसको पिक करूं, बस मेरे को यही आता है इन मेनी सो मैटर्स, नॉट दोनों ओनली इन मैरिज, सो यू मेनी कैन, थिंग्स। हाँ, सो मैं वही बोल रही हूँ ना कि डायरेक्टली आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इवन जंप डायरेक्ट टू यस और नो क्वेश्चन। अगर मैं, आई ऑलवेज फर्स्ट चेक कैसे होना प्रोज एंड चाहिए? कॉन्स। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोज एंड कॉन्स कि मुझे जॉब छोड़ना है, आई एम कंफ्यूज, मैं छोड़ू या हम्म नहीं छोड़ू। डायरेक्टली आई विल नॉट डू येस एंड नो। हम्म आई फर्स्ट चेक कि क्लाइंट को बोलती हूँ कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको यही कंपनी में कंटिन्यू करना है, आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है।
देन आई चेक अनदर क्वेश्चन, अगर आपने ये जॉब छोड़ दी, आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है. सो ये इन्फॉर्मेशन जब मैं क्लाइंट को प्रेजेंट करती हूँ, देन ही इज इन अ बेटर पोजिशन टू मेक अ चॉइस. वी कांट डिसाइड फॉर द क्लाइंट्स. मतलब बिफोर गिविंग अ यस नो हमें और थोड़े से ABC और क्वेश्चंस फ्रेम Obviously, करने चाहिए. obviously, who are we to tell do this and do that? उनको सेंस तो होना चाहिए, उनको सेंस तो होना मतलब चाहिए. अगर कोई जॉब का पूछे तो मैं डायरेक्ट कार्ड्स को ये ना पूछूं कि हाँ जी बताइए जी मुझे कि शुड ही स्विच द जॉब. नो, मतलब बिफोर स्विचिंग द जॉब Correct. आई शुड No, चेक आउट कि that's करंटली what उसका क्या चल रहा है. that's exactly what I teach in my course, a 3-step clarity frame. आपको yes no में जंप करना ही नहीं है. Just because spread is there, इतना क्लियर लाइफ में yes and no होता तो आसान हो जाती जिंदगी. ऐसे नहीं है. There are many angles. There are many angles. And you have no idea कि जब भी हम लोग क्लाइंट को pros and cons शेयर करते, when they listen to us, they get उनके भी intuitions trigger होते हैं कि हाँ यार ये सही है, वो सही है, शायद मैं ये करूंगा, वो करूंगा. Because they come to us because their mind is cluttered. दे वांट गाइडेंस. तो गाइडेंस सिर्फ ये करो ऐसे गाइडेंस नहीं होता है, रियल लाइफ में भी. आप एंड रियल मैम लाइफ व्हेन वी और शुड डू द क्लाइंट सेलेटिक रीडिंग हमें कब करना चाहिए पर्सन का, जैसे जो नहीं, हम अगेन यू 10 हैव टू कार्ड रीडिंग. लिसन टू माय सेशन. आई विल नॉट रिपीट दिस बिकॉज I मैंने will या get सो the recording in the group. या Yes, आई yes. इन We'll द share. ग्रुप probably yes after Okay. few days or something we will definitely upload. Okay. मैंने वो Okay. एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है कि Okay, I just स्टैंडर्ड. missed the actually just missed the session. I was very much नो occupied. I प्रॉब्लम. couldn't. या But यस. I just loved the clarities you are giving. Thank you so much. Meghu, right? Yeah, Megha. Hi. हेलो मैम, थैंक यू. बीच में मेरा कट हो गया था बिकॉज No ऑफ माय problem. डॉटर कॉल्ड अप मी. सो वो क्या करी? anyways, no ma'am, I'm already a tarot reader working on a platform. So the problem is, whenever we charge, we need to charge every time the reader comes or only once. Acha. That is one question mine. Okay ma'am. No, I didn't get your question. Ma'am, every time whenever a new client on the app platform comes, okay, should we charge every time our cards, Okay. or else only morning is enough? Okay, by name we charge the cards. Okay, through the name we charge, we are going to take a reading of this person, XYZ person. Okay, that I can understand. Before that also we charge ourselves, connecting ourselves to the universe. Okay, we have some rituals to do, right ma'am? So that should be done only once in the morning, right? This bit I'm getting confused. हाँ, अच्छा. Charge मतलब charging yourself. I am going into the fees का part. All right, all right. हाँ. Oh, okay. So the point is that कि I'll just share what I do. So एक मेरा standard एक रहता है meditation I do every day for half an hour. Okay. वो मेडिटेशन करने के बाद नॉट नेसेसरी आई बी इमीडिएटली स्टार्टिंग रीडिंग्स ऑन, वो नहीं. ठीक है. वो एक स्टैंडर्ड मेडिटेशन है, वेदर आई हैव अपॉइंटमेंट्स और आई डोंट हैव अपॉइंटमेंट्स, वेदर आई डू रीडिंग. ओके, ये एक जनरल, बिकॉज वी हैव टू कीप अलाइनिंग आवर एनर्जीज. दैट्स द पॉइंट नंबर 1. सेकंड थिंग इज, बिफोर, अगर मुझे पता है कि क्लाइंट 3 बजे आने वाला है, तो 5 मिनट्स बिफोर दैट आई ट्राई कनेक्टिंग विद द गार्डियन एंजल्स ऑफ दैट पर्सन. मतलब प्रेयर रिचुअल्स, प्रेयर जो भी है वो मैं करती हूँ 5-10 मिनट के लिए. आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द रीडिंग एंड एवरी टाइम नया क्लाइंट आता है, आई डू इट. Okay ma'am. नॉट जस्ट वन टाइम एक्टिविटी. एंड ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रूल भी नहीं है मेगा कि आपको एक ही बार करना चाहिए, हर एक बार करना चाहिए. नो, आई फील इट इज राइट बिकॉज आज मुझे पता है मैं कंप्लीटली, मेघा आ रही है मेरे यहाँ पर, so I'm getting aligned to your energy. So I just said, pray, okay, Megha aa rahi hai, please, let the right messages flow through me. Whatever the rituals I do it before every client. But ऐसा रूल नहीं कि आपको करना ही है. But It becomes I difficult when we are working on platform. We don't have so much of time. वो प्लेटफॉर्म का ना, यू रेफर आवर प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने बहुत ही ब्लंटली कुछ चीजें बोली है. तो बट यस, अगर आपको ऐसा है कि बैक टू बैक आपको रीडिंग देना है तो डू इट वंस, मतलब एक ही बार करो और प्रिपेयर योरसेल्फ. But the name we take, but only the thing is the main जो भी ritual है वो एक बार करेंगे तो सही होगा. चलेगा. हाँ, सी कैसे है कि सब वो जो है ना मेघा की, सी इट्स हाईली पर्सनल थिंग. मतलब अगर मान के चलो कि टुडे आई एम सो चार्ज इन माय पर्सनल लाइफ, फॉर एग्जांपल बहुत हाई ऑन, आई एम वेरी मच हाई ऑन माय एनर्जी. ओके,
तो आज I can do readings for 100 people. But what if आज मान के चलो कि I'm feeling little low. So probably I'll have to, every time I'm offering reading, I have to charge myself. Charge in the sense, Got it. work on my energy. So it's a pull नहीं है. Sometimes I don't know what happens. Everything will be going fine, but एकदम से blank हो जाता है. कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोले. Yes, yes, Why yes. this happens, I'm not understanding. Yeah, this happens because of many things. And जो मैंने, there are only two things based on my understanding कि ना we are in hurry to give answers. Okay, right. Okay. We don't feel calm within. Okay. Another thing is कि हम लोग को लगता है बहुत ट्रिकी कार्ड्स है, बट लेकिन अगर आपको यूनिवर्स कैसे काम करता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या एवरीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आपके अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी ब्लैंक नहीं जाओगे. ओके, सो नॉलेज अबाउट, नॉट जस्ट अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग, बट Everything. वैसे. मैम आपका वेबसाइट का Because of लिंक अगर डाल negativity देते. also, because of the negativity of clients impacts us, that time the वर यू देयर थ्रू आउट द सेशन? क्लाइंट का नेगेटिविटी किसी को कुछ नहीं अफेक्ट होता है. नो. हम कुछ वीडियोस एक्चुअली शेयर करेंगे फ्रॉम आवर प्रीवियस सेशंस आल्सो विद द कंप्लीट रिकॉर्डिंग प्लस कुछ शॉर्ट सेशंस आल्सो वेयर वी हैव कवर्ड सम ऑफ दीस क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं, जैसे नेगेटिविटी. राइट. नहीं, आज एक्चुअली के मैं सेशन में चाहती थी कि नेगेटिविटी के बारे में बात करें. वेबसाइट Yes, लिंक yes, की yes. अगर वेबसाइट Yes, लिंक. we will send. We'll share all of it on the just be in Again, the group. If you are in the group, that's where we'll keep sharing the rest of the thing. मेगा इन शॉर्ट नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं अफेक्ट होती है. Ma'am, but I डॉक्टर feel headache sometimes when I do the readings. After the readings, I do feel a headache or here on this side. मतलब 3-4 because बजे you're रात thinking को too from the much last 2-3 because days. you are stressed to give right reading. Okay. You're in too और वो much of घूम रहा stress. होता है, मतलब वो घूम रहा होता है दिमाग में क्लाइंट्स के क्वेश्चंस कई बार around 3 or 4 a.m. The questions are revolving around my head sometimes. मेडिटेशन हेल्प्स. मेडिटेशन हेल्प्स. ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि राइट ही रीडिंग देना है. हैव दिस हाँ. जेन्युइन पर्सपेक्टिव कि इनको हेल्प होनी चाहिए बस. That's it. Ma'am, When you try to but people control, sometimes come and check us. Ma'am, that is the worst thing the people do sometimes. मतलब This happens. जैसे मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे if we are doing a reading see, and they and come to online check. listen, girls. I'm completely against these online platforms. Let me put it very bluntly. I'm not going to talk Yeah. about it. It's your personal choice. आपको उधर काम करना है. But if you really understand ना, if you really understand कि how does मतलब अगर मैं आपके पास आती हूँ, आप डॉक्टर हो कि मुझे अभी के अभी मुझे 15 kg वेट कम करना है, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है, राइट? सो टैरो कार्ड रीडिंग, काउंसलिंग, एक कुछ तो उसका रोल है. अगर आपको वो रोल अगर समझ में आता है तो you will definitely, I don't know, it's again your choice. I have no one to comment on your choice whether you should be working for such platform or not. But I am totally against because you're not adding. मतलब क्या मिलेगा? एक 2 मिनट में फटाफट टारगेट जैसे रीडिंग करो. I'm totally against it. And I will never shy away because that's not how it works. डॉक्टर के पास जाओ, बोलो कि 2 मिनट में मुझे ठीक करो, ऐसे नहीं होता है. Yes, right, ma'am. I just complained this thing to the platform directly. I direct because Yeah. 2 minutes we Ma'am, cannot. how can a person answer in 3 minutes? Yes, it's not. I completely agree on the chat section. How can I take out the card in 3 minutes and check out that how are my current It's your energies? choice. So I'm not going to discuss this here. It's your choice. Yeah. See, this I'm is not very against. I'm against that. I have made my stand very clear, and I am no one to comment also in anybody's choices. So let's not discuss. Let's not bring this here. आपको कॉन्सेप्चुअली कुछ पूछना है ये करो, बट आई एम नो वन टू टेल यू कि 3 मिनट में देना है, आपको कैसे इफेक्टिवली देना है. नो, इफ यू हैव दिस क्वेश्चन आई कांट आंसर. I mean, it even don't work also. Practically, it never works. मैं वही बोल रही This हूँ, is still where, it's your choice. If you're still Yeah. continuing doing that way, तो headache तो होगा ही. Why are we doing it? Understand the basic purpose. हम किसी को help करनी है. Understand the what you say depth of the work that we are doing. Without that, आप सिर्फ superficial level पर ये कर रहे हो, आपको भी satisfaction नहीं, उनको भी नहीं, stress तो होगा ही. तो मैं यहाँ पे Anyway, Vishal will have to wind up. It's been yes. So just adding one quick part to what we just discussed. In fact, a lot of these platforms जहाँ अभी बहुत सारे questions आ रहे हैं, it is primarily with the purpose of a quick commercialization of entire thing of what you're doing. If you understand also the way Charuta has been doing, maybe
somewhere where what we have even covered within the course. There are certain pre-reading rituals also, as I think Megha ji asked. And while you are doing it, it is gradually something that you'll build in every subsequent reading of yours also in the future. So the time that it takes for one particular tarot session with any specific client has many layers and many more dimensions than just 3-5 मिनट में, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस भी ऐसे लोग लेना चाहते हैं और बहुत सारे चॉइसेस ऐसे होते हैं which are very life impacting decisions. Correct. Doing that in 2 minutes, 3 minutes, it is possible that आपके वो quick yes and no answer से they are making some very important life choices. So इसीलिए understanding from someone like from an expert who has been doing it for almost 15 to 20 years will add a lot more perspective. And exactly अगर आप किसी client का reading करना हो तो उसके पहले का आपका क्या preparation होना चाहिए, उसको time कितना देना चाहिए उस type of questions के लिए. So usually our sessions generally with one-on-one clients, the minimum is for 30 minutes. It might go even 1 hour and beyond that as well. So practice in that sense, how it ideally should be done. A lot of these things are also covered as part of the Tarot Clarity Framework and as part of the in-depth detailed course as well. So we'll also keep adding these perspectives. Just be in the group, in the Ask Me Anything group, and of course we'll call it off for today. But thank you so much for all the participation. एक फोटो निकालो विशाल. Yes, Switch on your cameras. Everyone can just switch on your cameras. And smile. कहीं पर भी, it's okay. Ma'am, one more last question. How much we should charge the client outside exactly? So I'm not getting that idea. Okay. So again, ये question बहुत simple है, answer बहुत detail है. Okay. Minimum price, what should be the? It's not about the minimum price here. It's all about the energy that you're putting. For example, अगर मान के चलो पूरा दिन, in general, forget about the tarot card reading. In general, are you working somewhere? What are you do? Or Yes. you? Okay. I'm working on the platform, but No. say In Bhas. general, अगर मान के चलो छोड़ दो. I mean, okay. In general, आप कोई भी एक task ले लो कि आप किसी के लिए full day काम कर रहे हो. So what is the amount that you should ideally be getting? For example, आपने मेरे लिए कुछ भी ऑफिस का काम मुझे आज हेल्प किया, and you spent 12 hours with me, and at the end of the day I give you 100 rupees. How will you feel? Exactly. Okay, so again there will be people who will be still happy. So there is no right and wrong. So it's all about यहाँ पर मैच होना चाहिए. अगर मान के चलो पूरा आपने बेसिक काम किया 12 आवर्स के लिए एंड आपने मुझे पूछा मुझे 1 करोड़ चाहिए, विल यू आस्क 1 करोड़ फॉर 12 आवर्स? हाँ, अगेन इट्स अ पर्सपेक्टिव. प्रॉब्ली एक्टर्स वगैरह विल आस्क, राइट? सो 100 रुपीज आपके लिए बहुत कम है, 1 करोड़ बहुत ज्यादा है. तो ब्रिज द गैप जहां पर आपको परफेक्ट लगेगा, दैट्स द राइट अमाउंट टू चार्ज. Okay, so I'm explaining the process. This is the process that you should follow. कि जहां पर आपको ऐसे लगता है कि I'm not comfortable charging से so for example अगर 1 hour reading के लिए कोई आ रहा है, I'm not comfortable charging 10,000 and I'm getting my energies will drain. यार मुझे लगेगा मैंने 1 hour का reading किया और मुझे सिर्फ 500 रुपए मिला, नहीं, I'm not comfortable. So bridge the gap. So what is the amount? The comfortable asking and receiving. That's the amount you should charge. चलो, yes, Vishal. Photo निकालो एक and then we'll. Yes. Quickly, everybody is ready. Anyone? Switch on the cameras, please. Switch on your camera. Everyone switch on the cameras. अभी जो लोग थे यहाँ पे online. Yeah. We can just say 1, 2, 3. Okay, so they'll know कि you've clicked. Okay, let's have it ready. 1, 2, 3. Smile. Great. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. I request everyone to post feedback on our session in our WhatsApp group so that everyone will understand कि हमारा purpose क्या है और हम लोग क्यों कर रहे हैं. Yeah, so do share if this session added value in your life, right? Thank you so much. Thank you so much. And the next session will be on the 3rd Sunday of March, right? So we'll announce it in the group. Thank you.